Welcome to everyone. Welcome to another lecture of my YouTube channel, which is named as B. Chemistry. Myself Bishwajit Pal. The channel B. Chemistry goes to several aspects, several topics wise lecture in the area in the subject of chemistry. Now, as I previously explained, we have already uploaded the 3rd September organic and the inorganic portion in the JEE Mains memory based solve paper of 2020 morning shift portion. Now, in today's lecture, we are going to have the physical chemistry portion, in which we are going to have some 7 to 8 questions that are coming in the JEE Mains 3rd September 2020 morning shift portion, and we are going to have the solve answer about those kind of questions. I hope the video that I am uploading about the organic and the inorganic portion is beneficial, is helpful to you. तो यहाँ पे हम लोग जो करने वाले हैं, वी विल हैव द टॉपिक वाइज लेक्चर एज वेल एज द सॉल्व पेपर पोर्शन. इन दोनों को मिला के वी विल हैव अवर चैनल दैट इज बी डॉट केमिस्ट्री. सो अगर आप नए हो मेरे चैनल में, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. अगर अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक करो, शेयर टू योर रूममेट्स, क्लासमेट्स एंड सो ऑन. I hope the video that I am making, the concept that I am sharing with you are beneficial to you, are helpful to you in the area, in the subject of chemistry. We have another Facebook page which is also named as B. Chemistry. अगर अब तक लाइक या फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे जाके एक बार लाइक फॉलो कर लेना, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे जाके तुम वो चीज़ को एक बार देख पाओगे. So for today's lecture we are going to have the physical chemistry portion. जैसे मैंने बताया, we have already inorganic and the organic solve paper. Now we have the physical chemistry portion, which is the 3rd September 2020 morning shift JEE Mains memory based solve paper. We have around 7 to 8 questions and we are going to verify each question in a depth format. I hope everything should be beneficial to you. Okay, so ज़्यादा समय नष्ट मत करके we will have our today's lesson, that is JEE Mains physical chemistry portion of 3rd September 2020 morning shift part. Okay, तो अगर अभी तक नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट, एंड ऑब्वियसली अगर कोई क्वेरीज है that I am video that I am uploading with you, that is the concept that I am sharing with you, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हें लग रहा है कि ये थोड़ा गलत हो रहा है या ऑल, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो चीज़ तुम वेरीफाई कर सकते हो. ओके, so let's start our today's lesson. So the part is, as I explained to you, we have around 7 to 8 questions, and these physical chemistry questions that I am discussing with you, these questions are very important because they are coming from different chapters that are included for the physical chemistry portion obviously, and these questions can be solved in one liner way. जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें ये ऑप्शन बोल दिया कि ये करेक्ट है और तुमने सुन लिया हाँ ये करेक्ट है, तुमने मिला लिया. लेकिन अभी जो लोग अभी JEE मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, अपीयर्ड हो, ओके, उन लोगों के लिए ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा. बिकॉज अगर मैं ऑप्शन बोल के चला जाऊँ तो ये वीडियो आई थिंक 10 या 15 मिनट में ख़त्म हो सकता है. लेकिन मैं ये वीडियो को लेंदी इसलिए बनाता हूँ बिकॉज इन एवरी केस आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन the answers which are correct according to me. Okay, so for that I have to explain each and every terms that are included to that correct answer. Okay, and that's why in every time the video becomes lengthy. तो उसके लिए मैंने पहले भी बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं हर एक क्वेश्चन को डेप्थ वे में एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए थोड़ा वो लेंदी हो जाता है. अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि सर कौन सा वाला फॉर्मेट तुम लोगों को चाहिए, कि सर डेप्थ फॉर्मेट में चाहिए या सिंगल फॉर्मेट में चाहिए, क्या फॉर्मेट में चाहिए, कमेंट सेक्शन में उसमें बताओ. आई विल रेक्टिफाई दोज थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर कंसर्न. ओके, सो फॉर टुडेज लेक्चर वी स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज कमिंग फ्रॉम द ionic equilibrium, that in which we are going to have a buffer solution. There are 4 types of composition of that kind of buffer solution, and they are asking which is formed a composition of the buffer solution. So यहाँ पे you have 0.1 molar 100 ml acetic acid, you have 0.1 molar 220 200 ml
sodium hydroxide. You have 0.1 molar 100 ml acetic acid, 0.1 molar 100 ml NaOH, 0.1 molar 100 ml HCl, 0.1 molar 100 ml NaCl, 0.1 molar 100 ml acetic acid, 0.1 molar 200 ml sodium acetate. These are the 4 compositions that are giving to you to understand which composition are going to have the buffer solution. कौन सा वाला buffer solution form करेगा. So for that little bit, अगर जिन लोगों को पता है व्हाट इज बफर सॉल्यूशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए थोड़ा मैं बता दूं, अगर पता है तो स्किप कर सकते हो वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जिन लोगों को नहीं पता है बफर सॉल्यूशन क्या होता है, तो बफर सॉल्यूशन कुछ ऐसा होता है कि मान लो तुम्हारे पास एक एसिड है, ठीक है, और वो एसिड का एक सॉल्ट है, ठीक है. अब ये एसिड और सॉल्ट का जो मिक्सचर है, ये दोनों एसिड और सॉल्ट का मिक्सचर में एक pH है. सपोज मान लो वो pH को जा रहा है अराउंड, मान लो कि 8.3, सपोज मान लो, चलो जो भी एसिड है तो इसके लिए 8.3 नहीं होगा, 7 से कम होगा, तो जो भी है मान लो 8.3 है सपोज टू बी, ठीक है. तो फॉर दैट 8.3 इसका pH है, और उसमें तुमने क्या किया है, तुमने 100 ml, मान लो 100 ml, ओके, स्ट्रॉन्ग NaOH उसमें तुमने ऐड किया है. यू ऐड 100 ml स्ट्रॉन्ग NaOH टू दैट सिस्टम. सो व्हाट इज हैपनिंग, तो क्या होना चाहिए, when you add a strong base to the system, the pH value will tends to a higher one because the solution become more basic, and for that this 8.3 should have been approaching to a 12 to 13, 12 से 13 में ये अप्रोच करने लगेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा because you add NaOH in that system. बट अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं कि ये NaOH ऐड करने के बाद भी it resist its pH change, ओके, इट रेजिस्ट इट pH चेंज, तो तुम्हें कैसा लगेगा, बोलोगे सर ऐसा कैसे हो रहा है कि रेजिस्ट कैसे कर रहा है, कि आप ऐड कर रहे हो स्ट्रॉन्ग बेस और उसके अकॉर्डिंगली इट रेजिस्ट टू चेंज द pH, तो ये तो थोड़ा अलग है. ये अलग ही चीज को हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन which can resist its pH upon addition of some strong base or strong acid to that system. Okay, it's a very important thing regarding analytical chemistry, regarding chemistry practical purpose. तो यहां पे ये जो मैंने एसिड और सॉल्ट का कॉम्पोजिशन लिया है, ये एसिड और सॉल्ट का 2 कॉम्पोजिशन होता है. एक होता है वीक एसिड और उसका सॉल्ट, और दूसरा होता है वीक बेस और उसका सॉल्ट. सुबह के टाइम पे मैं शूट कर रहा हूं तो थोड़ा नॉइज हो सकता है, एंड फॉर दैट थोड़ा उसको एडजस्ट कर लेना. ओके, सो दिस वीक एसिड प्लस सॉल्ट और वीक बेस प्लस सॉल्ट, दिस आर द 2 कॉम्पोजिशन बाय विच यू कैन मेक द बफर सॉल्यूशन. एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है एज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिटिक एसिड विच इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड, एंड अलॉन्ग विद दिस इट्स कॉन्जुगेट बेस. क्या होता है कॉन्जुगेट बेस, जो होता है उसका सॉल्ट जिसका नाम है सोडियम एसीटेट. सो इट्स कॉन्जुगेट बेस अलॉन्ग विद द वीक एसिड इज समथिंग रिप्रेजेंट द एसिडिक बफर सॉल्यूशन. उसके साथ साथ इफ यू हैव द एग्जांपल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अलॉन्ग विद यू हैव द अमोनियम क्लोराइड, जो एक इसका है कॉन्जुगेट एसिड Ca. सो फॉर बेस प्लस कॉन्जुगेट एसिड, सो बेस प्लस सॉल्ट मतलब वीक बेस, ऑब्वियसली अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, सो इट विल ऑल्सो मेक अ बफर सॉल्यूशन. अभी अगर मैकेनिज्म में जाऊं तो ये तो थोड़ा बड़ा होने वाला है वीडियो, इसलिए मैं उसको स्किप करता हूं. अगर कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर चाहिए ये वाला कुछ चीज, मैं एक डीपीपी शीट बना के मैं फेसबुक पेज में अपलोड कर दूंगा, ठीक है. तो जो भी है ये बफर सॉल्यूशन का जो कॉम्पोजिशन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट, दे विल रेजिस्ट देयर pH चेंज. जो भी pH है इसका, दे विल रेजिस्ट देयर pH चेंज अपॉन एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस. दैट इज समथिंग कॉल्ड द बफर मैकेनिज्म, जिसके अकॉर्डिंगली इट दे रेजिस्ट देयर चेंज इन pH, एंड दैट इज अ वेरी इनक्रेडिबल फैक्ट. जब भी कोई चीज को हम लोग कुछ एनालिटिकल वे में, कुछ प्रैक्टिकल पर्पस में यूज करते हैं, because pH is one of the most fundamental factor that every solution, every system has. And as pH is a very fundamental factor, you have to consider when you have a buffer solution, upon addition of acid or base, the pH isn't changed. That makes a very remarkable thing for a system.
कि तुम वो चीज को कोई भी जगह में यूज कर सकते हो, बिकॉज होता है कुछ, मान लो कुछ सबस्ट्रेट तुम यूज कर रहे हो जो सबस्ट्रेट एक पीएच में ही स्टेबल है, एक ऑप्टिमम पीएच के बाद दैट इज गोइंग टू बी डिसोसिएट और डिसइंटीग्रेट. So for that you have to take a fixed pH solution, and you can take that system into a buffer solution, because buffer solution can't change its pH upon addition of strong acid and strong base. अभी क्वेश्चन आएगा सर आप बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में ये चेंज नहीं होता कि, लेकिन कब तक ये चीज होगा? कि मान लो तुम स्कूल में एक लड़के के साथ तुम्हारा बनता नहीं है, लेकिन कब तक तुम ये चीज टॉलरेट करोगे कि उसका जो बिहेवियर है बहुत इरिटेटिंग है, लेकिन उसका एक लिमिट जोन है, उसके बाद अगर वो आ गया तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? मारपीट होगा प्रैक्टिकली. तो इसका भी एक लिमिट जोन है कि कितना देर तक तुम वो एसिडो बेस को ऐड कर पाओगे. उसके बाद अगर तुम करो तो उसका पीएच जैसा है वैसा चेंज होगा. तो उसको बोला जाता है बफर कैपेसिटी. क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बफर कैपेसिटी. दैट इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी. तो जो भी है, दिस इज अ वेरी स्मॉल फॉर्मेट वे डिस्कशन रिगार्डिंग द बफर सॉल्यूशन. बहुत सारे चीजें हैं इसमें, हेंडरसन इक्वेशन है, बफर मैकेनिज्म है, दैट हाउ दे रेजिस्ट द पीएच चेंज, बहुत सारे चीजें हैं. अगर लगे तो एक बुक में देख लेना, नहीं हुआ तो मेरे को बोल देना, मैं बोल दूंगा. तो जो भी है ये चीजों को मैं साइड में रख के अभी क्वेश्चन में फोकस करता है. ठीक है, तो जिन लोगों ने भी यहां तक देखा था, नहीं देखा था, वो स्किप कर सकते हो, बिकॉज जिन लोगों को पता है व्हाट इज बफर सॉल्यूशन डजंट मैटर. जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए ये चीज मैंने बताया, बिकॉज बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन कर रहे हैं और पता ही नहीं है बफर सॉल्यूशन क्या है, तो करने की क्या जरूरत है? सही में. तो द पॉइंट इज you have 1 2 3 4, these are the 4 system that you have, and along with this 4 system तुम्हें देखना पड़ेगा कॉम्पोजिशन क्या है. देखो पहला वाला क्या बोल रहा है? पहला वाला बोल रहा है 0.1 मोलर 100 ml एसिटिक एसिड, 0.1 मोलर 200 ml NaOH. अभी बात ये है कि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सही में, और इसके साथ ये ये वीक एसिड का क्या होगा? रिएक्शन होगा. अगर ये रिएक्शन होता है तो उसमें 100 ml एक्सेस NaOH जिंदा रहेगा, सही में, in that system, because 100 ml acetic acid will react with 100 ml NaOH, and 100 ml of NaOH will in excess amount. They are in excess amount, सही में. And when they are in excess amount, this will not make any kind of buffer solution, because buffer solution composition is something represented like this: weak acid plus salt, weak base plus salt. सही में, समझ में आया? दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? दूसरा वाला ऑप्शन है तुम्हारे पास एसिटिक एसिड है, फिर बोला गया उसके बाद NaOH. अभी प्रॉब्लम यह है कि यहां पे क्या होगा? यहां पे एसिटिक एसिड और NaOH का जो रिएक्शन हो गया, पूरा सोडियम एसीटेट प्लस वाटर में कन्वर्शन हो जाएगा. इट विल कन्वर्ट इनटू सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, सही में. एंड व्हेन इट इज कन्वर्ट इनटू सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, देयर इज नो एसिड, वीक एसिड और द एसिड दैट इज देयर. कोई भी एसिड वहां पे नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी टोटली कंज्यूम्ड बाय NaOH. यू हैव ओनली सोडियम एसिटेट प्लस वाटर, व्हिच डजंट रिप्रेजेंट अ कंपोजिशन ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट. यू कांट टेक दैट पार्ट आल्सो, तो इग्नोर मारो इसको. उसके बाद वाले में आ रहा है HCl प्लस NaCl. इसको तो पहले ही मैं इग्नोर मारूंगा, बिकॉज HCl इज अ की. HCl क्या होता है? HCl होता है स्ट्रॉन्ग एसिड. सो फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड यू कांट टेक द स्ट्रॉन्ग एसिड एज योर बफर सॉल्यूशन मेन इंग्रेडिएंट. Why? Because for the strong acid it is going to be totally dissociated, and when it is going to be totally dissociated there is nothing to be undissociated part. और अगर undissociated part कुछ है नहीं, as this is a strong electrolyte or the strong acid, there is no undissociated part. और अगर कोई undissociated part तुम्हारे पास नहीं होगा, okay, you can't apply the buffer mechanism to resist the pH change upon addition of this kind of strong acid or the strong base. mechanism अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं. buffer mechanism, okay. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट इनकरेक्ट. तो लास्ट ऑप्शन यही बचा है. और सब बोलोगे सर अभी तो क्या बोलोगे आप, एक्सप्लेन करो या नहीं करो, एक ही तो बात होने वाला है. एक ही बात होने वाला है. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, लेकिन हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखेंगे. क्या एक्सप्लेनेशन देखेंगे? देख लो, यहाँ पे एसिटिक एसिड है, मतलब वीक एसिड है, उसके साथ उसका सॉल्ट है, और ये 0.1 मोलर 100 ml तो पहले ही था, इसको लेके मैं कुछ बात नहीं करूंगा. उसके साथ इसका एक सॉल्ट कॉम्पोजिशन है, मतलब वीक एसिड विथ इट्स
conjugate base, that is its salt. And this is something represent the composition of buffer solution. तो यह ज़्यादा कठिन नहीं था क्वेश्चन, बहुत ईजी था क्वेश्चन. तुम्हें जस्ट जस्टिफाई करना था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए. When you have the acetic acid with the sodium acetate, that is the main composition of the buffer solution. Weak acid plus weak base, that is a acidic buffer solution. अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लेके होता या और कोई बेस को लेके होता तो बफर सॉल्यूशन बेसिक बफर सॉल्यूशन कहलाया जाता. Okay, but for that part, that is you have an acid that present in the system, you have a salt of that certain acid obviously that present in the system, both are something represent the buffer solution. That is pretty clear. और बाकी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया, कैसे एक्सप्लेन किया तुम्हें ही पता होगा. जैसे मैंने बताया कि बाकी सारे चीज़ों में दो ऑप्शन में तुम्हें एसिडिक एसिड देखने को मिल रहा है, बिकॉज ये दोनों ऑप्शन में, बिकॉज लेकिन ये दोनों ऑप्शन को वी कैन टेक दिस टू ऑप्शंस एज आवर मेन इंग्रेडिएंट पार्ट. दैट शुड नॉट बी आवर पार्ट टू एक्सप्लेन. ओके, तो 4 नंबर ऑप्शन दैट इज द करेक्ट वन, एंड दिस इज द आंसर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस composition will form the buffer solution. I hope you understand the concept. ठीक है, जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में. Now the question is coming from the chemical kinetics. chemical kinetics से क्वेश्चन आ रहा है. क्या क्वेश्चन आ रहा है chemical kinetics से? बहुत सही क्वेश्चन है. Second order reactions is always a multi step. First order reaction is always single step. Zero order reaction always single step. Zero order reaction always multi step. 4 ऑप्शन दिया गया है. क्या स्टेटमेंट ट्रू है बताना पड़ेगा. Now for that there is a very simple thing that you have to understand. When you consider the second order reaction, that is rate is proportional to two substrates, suppose A and B, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है R is proportional to A square. सही में ये भी हो सकता है. फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बताओ तो that is R is proportional to A, only A. और जीरो ऑर्डर के बारे में बताओ तो R is proportional to A to the power 0. that is the concentration of the substrate is not depend over the rate of the reaction. पता चल गया रेट के साथ क्या है कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन, एंड फॉर दैट रिलेशन अपॉन दैट रिलेशन यू हैव द टर्म विच इज समथिंग रिप्रेजेंट द ऑर्डर, जो पावर है. ओके, बिकॉज दिस पावर इज समथिंग रिप्रेजेंट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कि मान लो तुम्हारे पास पावर है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, ऐसा सोचा जाता है. जैसे पॉलिटिशियन के बारे में सोच लो, ठीक है, दे हैव द पावर, दे कैन मैनिपुलेट एवरीबॉडी, एवरीवन इन द सिस्टम. ओके, सो फॉर दैट ये पावर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस पावर इज समथिंग रिप्रेजेंट कि अगर तुम ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल करोगे तो द रेट विल बिकम 4 टाइम्स इंक्रीज. अगर तुम ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल करोगे तो द रेट विल बिकम 2 टाइम इंक्रीज. अगर तुम बी का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे डबल करोगे तो द रेट विल इंक्रीज बाय 2 टाइम. ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल करोगे तो रेट विल इंक्रीज बाय 2 टाइम. फोर्थ करोगे तो 4th टाइम. सो दैट द पावर मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर to explain that how concentration is changed the rate of the reaction, how the concentration changed the rate of the reaction, how it depends over concentration and as well as the rate, how they are interacting with each other. समझ में आ रहा है कि नहीं? सो उसके लिए एक चीज बोला गया है कि ये मल्टी स्टेप है सेकेंड ऑर्डर का. पहला ऑप्शन को लेकर बात करते हैं कि सेकेंड ऑर्डर इज ऑलवेज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन. ऐसी कोई बात नहीं है, बिकॉज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो फॉर अ स्टेप, ये सिंगल स्टेप में भी हो सकता है. सिंगल स्टेप में कैसे? एग्जांपल बताओ तो तुम्हारे पास है SN2. SN2 में क्या होता है? SN2 तो मतलब होता है R इज प्रोपोर्शनल टू हेलो एल्केन्स, दैट इज CBr. यहाँ पे चलो पकड़ लेते हैं, उसके साथ होता है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, दैट इज OH माइनस. सो हियर यू हैव 1, हियर यू हैव 1, सो 1 + 1 दैट विल बिकम 2. समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 + 1 that will become 2. So the rate of the reaction is proportional to the haloalkane as well as the nucleophile. और ये जो रिएक्शन है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, that is SN2 reaction. This is a concerted pathway reaction, that is it is a one step reaction. And when you consider a one step reaction, इसका ऑर्डर 2 आ रहा है. सो दिस स्टेटमेंट शुड नॉट बी करेक्ट कि मल्टीपल स्टेप में ही तुम्हें सेकंड ऑर्डर देखने को मिलेगा, सिंगल स्टेप में नहीं देखने को मिलेगा. दैट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट टू हैव. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. सेकंड ऑप्शन में क्या आ रहा है? सेकंड ऑप्शन में आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज सिंगल स्टेप रिएक्शन. दैट इज नॉट द फैक्टर. वही चीज में दोबारा दोहराता हूं. अगर वी कंसीडर द SN1, then the rate is only proportional to the concentration of the haloalkane compound, not over the nucleophile. Why?
because in the slow step of the reaction only the haloalkane is going to be participate over that reaction, and when the haloalkane is going to be participate over the reaction, that is something represent that substrate will be in the rate equation. कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं, कोई और सोर्स नहीं, because they are in the slow state, that is the only substrate that is participating in that over period. समझ में आ रहा है कि नहीं? So R is proportional to CBR to the power 1. So SN1 order equal to 1. ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, पहला वाला स्लो है, दूसरा वाला फास्ट है. सो सेकेंड ऑर्डर इज ऑलवेज सिंगल स्टेप. दैट इज नॉट ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट. आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर द SN1 pathway because the first step is slow step where the carbocation is formed, and when the nucleophile is attached to that carbocation, it is going to be the first step of the reaction. So it is a multiple step reaction, though it has order of 1. सिंगल स्टेप में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बहुत सारे रिएक्शन है जहां पे सिंगल स्टेप है. मान लो एस्टर हाइड्रोलाइसिस. एस्टर हाइड्रोलाइसिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल स्टेप रिएक्शन. स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन सिंगल स्टेप रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, बिकॉज एट लास्ट स्यूडो है जो भी है, वो जो रेट है वो खाली एस्टर के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर वो चीज डिपेंड करता है और कुछ नहीं है. तो सिंगल स्टेप में भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है. इट डिपेंड्स. ओके, लेकिन ऑलवेज वाला जो यहां पे वर्ड दिया गया है दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग. तो दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. 3 नंबर स्टेटमेंट में आते हैं. जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ सिंगल स्टेप. इसके बारे में लेके क्या बोलना है आपको? बोलोगे सर सिंगल स्टेप में हो रहा है तो ये भी डबल स्टेप में होगा, आप सबको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा? इसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास है, बहुत सिंपल है. क्या है? कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जब होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, वट एवर द रिएक्शन इज, in case of chemistry, when the reaction is happened, suppose A2 product, suppose a reaction is happened to A2 product. So for that reaction there are two terms that you have to include. That is, number one is called the order of the reaction and the second one is called the molecularity. Okay, and when you consider these two terms, that is order of the reaction and the molecularity of the reaction, you have to judge that this A के accordingly जो rate equation आएगा उसमें we will consider the order of the reaction, and for that I think पकड़ लो यहाँ पे order है 1. और molecularity का मतलब क्या है? The number of species in that balance equation. obviously अगर equation को तुम balance करते हो तो for that balance equation the number of reactant molecules that are participating, so for that you will also the molecularity, that is should be 1. You have also the molecularity that is equal to 1. In most of the cases when you have the single step reaction, then the order should be equal to molecularity in most of the cases. स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के, वैसा वाला केस को छोड़ के, बाकी सारे केसों में जैसे मान लो जो सिंगल स्टेप में फॉरवर्ड होता है, मॉलिक्यूलरिटी शुड बी इक्वल टू ऑर्डर. अभी मान लो मॉलिक्यूलरिटी अगर ऑर्डर से इक्वल होता है तो ऑर्डर अगर किसी चीज का जीरो आ रहा है, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो जीरो आ रहा है, मॉलिक्यूलरिटी कितना आएगा? मॉलिक्यूलरिटी भी आएगा जीरो. अभी क्वेश्चन है दिमाग में आएगा, सर मॉलिक्यूलरिटी अगर जीरो आता है तो ये रिएक्शन का जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन का जो सिग्निफिकेंस है वही इनवैलिड हो जाएगा, बिकॉज मॉलिक्यूलरिटी जीरो मतलब देयर इज नो वन to take part in the reaction. Regarding molecularity zero का यही मतलब है, no reactants are take part in the reaction, then how will be the product form? तुम कैसे बता सकते हो that product will form? Nothing will happen there. So for that, when you have the A2 product composition, there should be some molecules that are participating in the reaction and you have the product. And when you consider that thing, that you have something, some molecules that are going to be interacting with each other, there will be some chemical reaction and the product will form. Order zero हो सकता है, लेकिन molecularity कभी zero नहीं हो सकता, because there should someone that will participate in the reaction and the product will form. So for that molecularity should not be zero. So zero order reaction कभी single step नहीं हो सकता, because single step अगर होता है तो zero order का मतलब order होगा zero. Order zero अगर होता है तो molecularity होगा zero. Molecularity zero is not possible. It will not have any kind of significance to explain the chemical reaction for that certain composition or the certain conversion of the certain conversion. सही में?
And the last one, the next one is called the zero order reaction, is always a multi step reaction. नहीं बोलोगे सर सब हो गया तो यही राइट होगा, मेरे ख्याल से यही राइट होगा, बिकॉज अगर तुम रेट के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन का कोई जो टर्म है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ ऐसा है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन दैट यू हैव टू द पावर जीरो, मतलब ये जो सबस्ट्रेट है, द सबस्ट्रेट इज इन लार्ज एक्सेस, the substrate is in large excess. When the substrate is in large excess, the concentration isn't changed that much throughout the reaction when it is large excess, and as a result regarding that concentration of the substance, it doesn't depend on the rate of the reaction. एक possibility है zero order reaction को explain करने के लिए. Okay, so order zero हो सकता है, you have the probability, it may be single step, it may be it obviously multi step, it obviously in multi step, it should not be single step, लेकिन ऑर्डर जीरो हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज मल्टी स्टेप में क्या होगा, मल्टी स्टेप में यू हैव सेवरल स्टेप मॉलिक्यूलरिटी वैल्यू, 3 स्टेप में जा रहा है, 3 स्टेप के लिए 3 मॉलिक्यूलरिटी वैल्यू होगा, जो ऑर्डर के लिए एक ही होगा. फॉर ए स्पेसिफिक रिएक्शन देयर शुड बी ओनली 1 वैल्यू ऑफ ऑर्डर, जितना भी स्टेप में वो जाए. ओके, so for that, according to me, as this is the most fundamental thing that you have to consider, that single step, for a single step reaction the order should be equal to molecularity, and that's why यहाँ पे ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को मैं ऑलवेज मल्टीपल स्टेप बोलूंगा, मैं सिंगल स्टेप कभी नहीं बोलूंगा, बिकॉज मल्टीपल स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी का जीरो वैल्यू कभी नहीं आएगा, देयर विल सम सेपरेट वैल्यू, सिंगल स्टेप में जीरो वैल्यू आएगा, and which doesn't significance anything about the specific chemical conversion. I hope you understand the concept. ठीक है, तो this is the option number 4, that is the correct one. जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में. Okay, there's a very famous question that is coming for the thermodynamics. जैसे मैंने बोला था पहले, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि we will have several topic wise lecture, और इसीलिए मैं ये वीडियो को प्रेफर करता हूं, क्योंकि जो कैंडिडेट अभी जेईई मेंस या नीट के लिए अपियर कर रहे हैं, फॉर दोज दिस आर द वेरी कॉमन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, कि तुम्हें कुछ कुछ चैप्टर को लेना है और कुछ कुछ चैप्टर को अच्छी तरीके से देखना है कि ये चैप्टर मेरे जोन में है, और जो जो चैप्टर तुम्हारे जोन में है उन लोगों को अच्छी तरीके से धो डालो. एंड फॉर दैट ये वीडियो लेक्चर तो मैं बना ही रहा हूं, इसको देख लो, समझ में आ जाएगा और थोड़ा कॉन्सेप्ट ग्रोथ होगा. तो जैसे मैंने काइनेटिक्स से क्वेश्चन किया, अभी थर्मोडायनामिक्स हुआ, आयनिक इक्विलिब्रियम हुआ, दिस आर द मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. और अगर फिजिकल केमिस्ट्री किसी का नहीं हो रहा है तो 90% या 85 अबव परसेंटाइल छोड़ दो, जरूरत नहीं है. ठीक है, वो सपना छोड़ दो अगर किसी का फिजिकल केमिस्ट्री नहीं हो रहा है तो. इट्स अ हार्ड ट्रूथ, आई कांट फेक दैट मैटर. ठीक है, तो जो भी है, तो यहां पे क्वेश्चन है, हीलियम गैस बैलून एक्सप्लोड कर रहा है, क्या प्रोसेस है. 4 दिया गया, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल, एडायबेटिक, रिवर्सिबल, एडायबेटिक, इरिवर्सिबल. क्या होगा, बैलून एक्सप्लोड कर रहा है. बैलून जब एक्सप्लोड करेगा, ये तो बहुत सही चीज है सर, ये तो इरिवर्सिबल होगा, इसमें क्या बोलने की बात है. सही में ये चीज को, कि तुम एक कंटेनर है, in that container you have some gaseous molecule, they are pressurized to a certain zone, and when they are going to be in expansion process, okay, after that expansion, when the gases are going to be released, their volume is going to be increased, फिर से वही गैस को दोबारा एक कंटेनर में स्टोर करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. It's thermodynamically highly unfavorable. Okay, it's a very common thing. Thermodynamics जो predict करता है कि about the spontaneity of that certain reaction, that whether it is feasible or not, natural occurring जो है. तुम external work करके तुम उसको कर सकते हो, the reversible process. Suppose an example, due to gravity, पानी ऊपर से नीचे आता है, कोई भी waterfall ले लो, okay, कोई भी चीज़ आता है, वो बात नहीं है, waterfall ले लो. लेकिन अगर नीचे से ऊपर जाओ तो क्या होगा, नीचे से ऊपर जाने के लिए यू हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल रिसोर्स.
Okay, you have to apply some external resource, otherwise the process cannot be occur, because नीचे से ऊपर जाने के लिए that is not the thermodynamically favorable process. ठीक है, तो उसके लिए कुछ कुछ प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, कुछ कुछ इरिवर्सिबल होता है. जैसे यहां पे जो चीज हम लोग को बोला गया है वो तो टोटली इरिवर्सिबल है, बिकॉज फिर वो जो गैसियस सिस्टम, जो गैस हीलियम गैस था वो बेलून के अंदर, उसको फिर से बेलून में लाना, आई डोंट थिंक दैट्स अ part to explain. Okay, so for that when you have this kind of irreversible process, ये तो confirm हो गया. उसके बाद क्या होगा? It should be isothermal or it should be adiabatic. Which step it is going to be happen? So when you have isothermal and the adiabatic both step as your fundamental process requirement, तो उसके accordingly हम लोग को ये चीज देखना पड़ेगा. Adiabatic process का मतलब क्या है? Adiabatic process का मतलब है the Q should be constant. इसका मतलब क्या है? The dq should be 0, that is the heat change should be 0. मतलब if this is a system and this is the surrounding, there should not be any heat exchange between system and the surrounding. There should not be any heat exchange between system and the surrounding, and when there should not be any heat exchange between the system and the surrounding, that process is something represent the adiabatic process. And the second thing is something called the isothermal process. What is something represent as isothermal process? The isothermal process means that T is equal to constant, that is the dt equal to 0. इसका मतलब क्या है? The same thing, the system temperature should be constant. System का जो temperature है वो temperature constant होगा. That is something called the isothermal process. Now, in which process this exploitation will take place? क्या होगा? Between isothermal and the adiabatic process, यहां पे मैं adiabatic process को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा. मेरे पास isothermal का भी एक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैं adiabatic process को ज्यादा यहां पे जोर दूंगा. isothermal का क्या एक्सप्लेनेशन है मैं बताता हूं. adiabatic को मैं यहां पे ज्यादा जोर दूंगा, बिकॉज इन द adiabatic process क्या होता है? हीट कांस्टेंट होता है. अभी this exploitation process is happen very spontaneously, और बोल सकते हो बहुत फास्ट हो रहा है. And when this process is occur very fast, the heat exchange between the system and the surrounding will not occur, because the process is occur so fastly. बहुत फास्ट हो रहा है प्रोसेस, एंड फॉर दैट द हीट एक्सचेंज दैट ऑकरिंग बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग शुड बी 0. समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत फास्ट हो रहा है प्रोसेस, कुछ पता लगने से पहले ही चीज हो रहा है, इतना फास्ट हो रहा है. ओके, इट विल रिक्वायर 10 to the power minus सेकेंड. 10 to the power माइनस मतलब 10 to the power minus x पकड़ लो, x के 2 3 4 हो सकता है. एक सेकेंड भी यहां पे लग नहीं रहा है, इससे भी कम लग रहा है. 10 to the power माइनस में आ रहा है सेकेंड. सो द प्रोसेस इज ऑकरिंग वेरी फास्ट, एंड व्हेन द प्रोसेस इज ऑकरिंग वेरी फास्ट, the heat exchange that is occurring between system and the surrounding should be 0. And when this has happened, the heat exchange is not happen between the system and surrounding, the process should be termed as a adiabatic process, and you have the irreversible term into it, because as I explained, this can't be a reversible one. ठीक है? So adiabatic irreversible, that is my opinion. According to my opinion, that should be the format. और एक चीज मैं यहाँ पे शॉर्टकट में तुम लोग को बता दूं, कोई भी बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, a process that occurring very fast, it should be a adiabatic process. The process should be termed as a adiabatic process. ये चीज दिमाग में लग लो, because for the very fast process where the time is required something 10 to the power minus x second, the process occurring very fast, for that process the system and the surrounding heat exchange is negligible, and that's why the process is termed as a adiabatic process. I hope you understand. और आइसोथर्मल का क्या एक्सप्लेनेशन है ये चीज मैं थोड़ा बता दूं. यहां पे अगर एक चीज का ये लोग बात करते थे जिसका नाम है, उल्टा लिख दिया मैंने, जो भी है, फ्री एक्सपेंशन. अगर ये लोग बात करते हैं अबाउट फ्री एक्सपेंशन का एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं.
फ्री एक्सपेंशन का मतलब यह है कि जैसे मान लो जो साइकिल का ट्यूब है उसका जब तुम हवा निकालते हो बल ट्यूब खोल के, तो वो जो उसके अंदर जो गैस था वो बहुत प्रेशर में वहां पे एक सर्टेन एरिया में वो बाउंडेड था। जब तुम वो प्रेशर रिलीज कर रहे हो तो वो स्पॉन्टेनियसली रिलीज हो रहा है, वो गैस एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत फास्ट एक्सपेंशन हो रहा है। और उसमें जो अपोजिंग प्रेशर है वो अपोजिंग प्रेशर होता है जीरो, अपोजिंग प्रेशर होता है जीरो। और जब वो अपोजिंग प्रेशर तुम्हारा होगा जीरो तो इसमें वर्क डन जो होता है वो वर्क डन होता है जीरो। और ये प्रोसेस को बोला जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। ये चीज दिमाग में रख लो, कोई भी फ्री एक्सपेंशन के बारे में तुम्हें बोला गया है जिसमें जिसके लिए वर्क डन जीरो होता है उसको बोला जाता है आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस। डेल्टा एच होता है जीरो, एंड व्हेन द डेल्टा एच इज जीरो दिस शुड बी टर्म्ड एज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है वो तो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आइसोथर्मल होगा अगर वो फ्री एक्सपेंशन में जा रहा है तो। जैसे साइकिल ट्यूब में जो हवा होती है वो एज एन एग्जांपल, या एलपीजी सिलेंडर में जो गैस होता है उसको जब नॉब तुम खोल देते हो जो जैसे वो एक्सपेंड करता है उसको बोला जाता है फ्री एक्सपेंशन। एंड फॉर दैट फ्री एक्सपेंशन इट शुड बी टर्म्ड एज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड व्हेन एज दिस इज अ आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस। ठीक है, इसके लिए वर्क डन जीरो होता है बिकॉज कोई ऑपोजिंग प्रेशर नहीं होता है, और उसके लिए internal energy as well as the enthalpy is also zero. That's why this is an isothermal process. रिवर्सेबल या इरिवर्सेबल ये प्रोसेस के ऊपर है। तो यहां पे फ्री एक्सपेंशन के बारे में ज्यादा जोर नहीं दिया गया है, यहां पे खाली फास्ट प्रोसेस के अकॉर्डिंगली ये ऑप्शन को मैं चॉइस कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन में फ्री एक्सपेंशन का एक भी शब्द बोला जाता, आई विल गो फॉर द फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, दैट इट शुड बी आइसोथर्मल वन। Okay, and for the adiabatic irreversible process जो एक्सप्लेनेशन है वो तो मैंने दिया, दैट इज द फॉर द फर्स्ट प्रोसेस द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज नेग्लिजिबल, दैट्स व्हाई वी कांट कंसीडर दैट पार्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया होगा। सो फॉर माय ओपिनियन द ऑप्शन शुड बी 4। यहां पे 2 भी हो सकता था ये चीज अगर वो लोग फ्री एक्सपेंशन को ज्यादा जोर देते। ठीक है, तो ये चीज मैं एक्स्ट्रा यहां पे बता दे रहा हूं, ये चीज दिमाग में रख लो। फॉर द फ्री एक्सपेंशन इट शुड बी एन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड द वर्क डन शुड बी जीरो। और एडियाबेटिक फास्ट प्रोसेस, एवरी फास्ट प्रोसेस है एडियाबेटिक बिकॉज द हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज द क्वेश्चन दैट इज कमिंग फ्रॉम द थर्मोडायनामिक्स। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो भी चीज मैं यहां पे बता रहा हूं, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम एनी क्वेरीज दैट यू वांट टू चेक कि सर ने जो बताया ये चीज गलत हो रहा है या कुछ और, यू कैन वेरीफाई ओवर द कमेंट सेक्शन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द वेरी फेमस, दैट इज कमिंग फ्रॉम द कंडक्टेंस, दैट इज कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पोर्शन। जैसे मैंने बताया ईच चैप्टर्स हैज देयर ओन सिग्निफिकेंस, सो फॉर दैट क्वेश्चंस दे आर समथिंग रिप्रेजेंट कंडक्टेंस वाला क्वेश्चन है, जहां पे यू हैव 2 कंडक्टेंस वैल्यू, वन इज C1 सेकंड वन इज C2, एंड फॉर दैट यू हैव 2 सबस्ट्रेट, वन इज NaCl वन इज बेरियम सल्फेट। यहां पे कुछ ऑप्शन दिया गया है, कौन सा करेक्ट है तुम्हें निकालना है। तो NaCl का कंडक्टेंस क्या दिया गया है C1, बेरियम सल्फेट का कंडक्टेंस क्या दिया गया है C2। ठीक है, किसका ज्यादा होगा ये क्वेश्चन में मैं ज्यादा समय नहीं नष्ट करूंगा बिकॉज सबको पता है NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जब NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट विल डिसोसिएट 100% नहीं 0.09 होता है इसका अल्फा वैल्यू। ठीक है, it will dissociate into Na plus plus Cl minus, which something represent, it will give a very much a large amount of constituents ions in the aqueous medium, and as the constituents ions are responsible to carry the charge, so the conductance should be large, हाई होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब हाई कंडक्टेंस। बेरियम सल्फेट तो तुम लोग को पता होगा, बेरियम सल्फेट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इट इज स्पीयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। एग्जांपल बताऊं, अभी एग्जांपल बता देते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ द सल्फेट आयन। बेरियम सल्फेट प्लस 2HCl, this is something represent the white precipitate, and in aqueous medium this is sparingly soluble salt.
जो salt sparingly soluble है in aqueous medium, how can you consider that salt is going to be have a good value of conductance? Because ये तो aqueous medium में exist नहीं करेगा. अगर exist ज़्यादा नहीं करेगा then it will give a very less amount of its constituents ion in the aqueous medium. Very less amount, and when it is giving a very less amount of ion in the aqueous medium, it is something represent कंडक्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा. तो यहां पे एक चीज तो बहुत सही है कि C1 का वैल्यू बहुत ज्यादा आने वाला है C2 से, बिकॉज बेरियम सल्फेट इज अ स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अभी और एक जगह है, ये ऑप्शन को मैं इग्नोर कर रहा हूं, ये दोनों ऑप्शन को, बिकॉज ये दोनों ऑप्शन में ये खाली ग्रेटर देन है. खाली ग्रेटर देन नहीं होगा, मच ग्रेटर देन होगा. और ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, आई थिंक तुम्हें पता चल गया. और ये ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि यहां पे तुम अच्छी तरीके से देखो, यहां पे T1 दिया गया है जिसका टेम्परेचर कम है, T2 का ज्यादा है, वैल्यू कम है, क्या ज्यादा है. एट टेम्परेचर T, because at constant temperature every solution has their fixed conductance, because conductance is a temperature dependent term. जितना टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ऑब्वियसली एक ऑप्टिमम लेवल है इसके लिए. यू कांट हैव द लार्ज टेम्परेचर, यू कंसीडर कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत टेम्परेचर बढ़ा दो उसके बाद उसका कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है. इट हैज सम ऑप्टिमम वैल्यू, बट टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा. लेकिन वहां पे जो 2 नंबर ऑप्शन है, वहां पे ऑप्शन कुछ उल्टा दिया हुआ है. देखो, टेम्परेचर कम में ज्यादा कंडक्टेंस दिया गया है, टेम्परेचर 2 में कम कंडक्टेंस दिया गया है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो ये उल्टा ही दिखा गया है. ये अगर C1 T2 होता, ग्रेटर देन C1 T1 होता, तो ये सेटिस्फाइड होता, अगर अदरवाइज इट इज नॉट. सो अकॉर्डिंग टू मी द ऑप्शन 1 शुड बी द करेक्ट वन. The correct one to explain C1 is much greater than C2. That should be the option 1, because NaCl and barium sulfate, there is enormous difference between their characteristics in aqueous medium. I hope you understand the concept. Okay.